Hello everyone, this video is a guideline to read Turnitin Originality Report. What we usually do is we get our plagiarism checked through our teachers or other researchers, but we are unable to interpret the plagiarism report. So today we will discuss in detail how to interpret the report. Let's start. This is an originality report from Turnitin. You can see here it is written Turnitin Originality Report. And the similarity index is 29%, means this document is 29% plagiarized. And from here we can see out of this 29%, 15% is from internet sources, 16% is from publications, 20% is from student papers. Means to say in sources say data has been copy pasted. Now if we go down, we have further details. 3% match is from these publications, 3% match is from the internet. This is the link. If we open this link, we will see what has been copied. इसी तरह you can see all the similarities. Till this we have all the similarities. अब if we go down, तो ये हमारा जो है table of contents, it is in blue color, it is all plagiarized. So when you are going to check your plagiarism, make sure you have removed table of contents from your document, otherwise it will be added in plagiarism. See, it is in blue color, it is all plagiarized. And this one is similarity of plagiarism in blue. Okay, let's go into further details. This colored portion is also plagiarized, this colored portion is again plagiarized. If you further go down, ये green वाला portion भी plagiarized है. Now this green color is similar to the green color here. Where is the green? This one. Means वो data जो हमने वहाँ पे green color में देखा है, that is similar to the data in this link. ठीक है. So the basic meaning of color in the plagiarism document is this, कि वो हमें बताता है ये वाली चीज़ किससे मैच कर रही है. सिमिलरली ये वाला भी ऊपर किसी ये कलर भी मैच कर रहा होगा. दिस इज़ ब्राउन, तो यू कैन सी ब्राउन भी यहाँ पे होगा. दिस वन. ठीक है. इस तरह से वी हैव ऑल द colored words as plagiarized. You can see in the whole document. जो प्लेजरिज्म का रूल होता है वो ये होता है कि जो 3 वर्ड्स अगर आप सेम लिख देते हो किसी डॉक्यूमेंट से तो वो प्लेजरिज्म में आते हैं. सो while copy pasting, not copy pasting, while writing from any your research, make sure you rephrase the sentences. So this was one document. I will show you another document as well. This is the second plagiarism report from Turnitin. You can see उस report में different तरीके से colors थे. Like this, एक box बन जाता था और वो अलग से उसका color आ जाता था. And here the portion is highlighted in color. अब यहाँ पे इधर नंबर भी लिखा हुआ है, 8 नंबर. सो इसके जो है डिटेल्स वो एंड पे हैं. इफ़ आई गो डाउन, तो आई विल कैन सी कि ये 8 नंबर इज दिस. ये यहाँ से प्लेजरिज्म, यहाँ से सिमिलर है इस स्टूडेंट पेपर से. ठीक है.
इसका 10% सिमिलैरिटी इंडेक्स है और उसको फर्दर उसका 4% ऑफ 10% इज़ फ्रॉम इंटरनेट सोर्सेज, 3% ऑफ 10% इज़ फ्रॉम publications and 9% of this 10% is from student papers, और उसको फर्दर उसने स्प्लिट करके बताया है फ्रॉम वेयर द थिंग्स हैव बीन कॉपीड या अगर बाय मिस्टेक भी सिमिलर हो गई हैं तो। ठीक है, अब हम ऊपर जाते हैं। तो एक्नॉलेजमेंट में हमने देख लिया था कि इट वाज नंबर 8 और फिर फर्दर एब्स्ट्रैक्ट में इट इज़ फ्रॉम नंबर 7। तो इफ़ यू गो डाउन इन नंबर 7 तो यू विल सी कि ये कहाँ से सिमिलर हुआ है, तो आपने इसको चेंज करना है। हाउ यू विल चेंज इज लाइक इस तरह से लिखा हुआ है, एज पर एम्पिरिकल एविडेंस इट हैज़ बीन सजेस्टेड दैट प्रोजेक्ट्स आर अनएबल टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टाइम, स्कोप एंड बजट। तो हाउ you can change this part that the projects are unable to meet the goals of scope टाइम एंड बजट। इस तरह से आपने किसी भी तरह उसको रिफ्रेश करना है। अगर एक्टिव वॉइस है तो उसको पैसिव वॉइस में कर लें या किसी भी तरह रिफ्रेश करना है। तो आफ्टर दिस यू कैन सी कि ये मैंने जो चैप्टर नंबर्स डाले हुए थे अपने, ये मेरा रिसर्च प्रपोजल है बेसिकली, तो इसके चैप्टर नंबर भी आए हुए हैं प्लेजरिज्म में। तो मेक श्योर आपने नंबर 1 टेबल ऑफ कंटेंट्स रिमूव करने हैं while checking plagiarism, number 2 chapter numbers और and chapter names आपने रिमूव करने हैं, एंड नंबर 3 references रिमूव करने हैं। if you don't remove references they will be plagiarized। ठीक है, तो now you can see कि यहाँ पे construction industry plays an important role in development and growth of a country। इसमें से ये पार्ट और ये पार्ट plagiarized है। तो what you can do is you can rephrase the sentence, how construction industry plays an important role। तो you can write कि construction industry contributes towards इसको development and growth को you can do growth and development of a country। इस तरह से you can rephrase। if you further go down तो यहाँ पे भी ये प्रोग्राम एवेलुएशन एंड रिव्यू टेक्निक, ये एक टेक्निक का नाम है पर्ट, तो इट इज़ प्लेजराइज्ड। तो अब हम टेक्निक के नेम को तो चेंज नहीं कर सकते, तो व्हाट अ वे टू रिमूव दिस प्लेजरिज्म इज़ दैट कि हम लोग यहाँ पे PERT पर्ट लिखें बस, और हम अपना एक एब्रीवेशंस बनाएं जिसमें हम इसको एक्सप्लेन कर दें कि पर्ट है क्या। सिमिलरली ये क्रिटिकल पाथ मेथड, ये भी एक मेथड का नाम है, एक टेक्निक है, तो ये भी प्लेजराइज्ड है। तो हमें चाहिए यहाँ पे भी हम CPM लिखें और हम अपने एब्रीवेशंस में जाके इसको एक्सप्लेन कर दें। देन ये भी छोटी मोटी प्लेजराइज्ड सेंटेंसेस हैं, इनको भी रीट्रेस करने की ज़रूरत है। यू कैन सी के हर लाइन जो प्लेजराइज्ड है उसने उसके साथ नंबर दिया हुआ है, और अगर हम नीचे जाके देखेंगे इस नंबर में तो इट विल टेल अस फ्रॉम वेयर इट हैज़ बीन कॉपीड या किस चीज़ से ये सिमिलर है। अब ये मेगा कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है, ये MCP मेगा कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट MCP। अब ये प्लेजरिज्म में नहीं आया, तो ये भी दीज आर 3 वर्ड्स, मेगा कंस्ट्रक्शन एंड प्रोजेक्ट्स। तो बेटर वाज टू अगेन राइट दिस इन एब्रीवेशन फॉर्म, और इसको वहाँ मैं एक एब्रीवेशंस की जो लिस्ट बनाती वहाँ पे मैं इसको एक्सप्लेन कर देती, बिकॉज देयर आर चांसेस कि ये भी प्लेजरिज्म में आ सकता था। नाउ सी के मैंने जो पिक्चर की कैप्शन डाली है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेगा प्रोजेक्ट्स, इट इज़ ऑल्सो प्लेजराइज्ड। तो मेक श्योर कि आपने यहाँ पे भी एक ऐसी कैप्शन डालनी है कि वो प्लेजरिज्म में ना आए, या ऐसे लिख देते मेगा प्रोजेक्ट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, या कैरेक्टरिस्टिक का कोई सिनोनिम लिख देते तो ये प्लेजरिज्म ना आता। यहाँ पे एक मिस्टेक ये है, मिस्टेक
फ़िलहाल तो रेफरेंसेस रिमूव किए हुए हैं. व्हेन यू ऐड एनी पिक्चर इन योर डॉक्यूमेंट जो आपने खुद नहीं बनाई, तो ऑलवेज मेंशन सोर्स ऑफ दैट पिक्चर. अब ये अर्न वैल्यू एनालिसिस, अगेन ये एक मेथड, एक टेक्निक का नाम है अर्न वैल्यू एनालिसिस. तो बेटर वॉज कि मैं यहाँ पे एक दफ़ा EVA मैंने लिख दिया है, अर्न वैल्यू एनालिसिस लिख दिया. अब मैं इसको बार बार रिपीट ना करूँ, इसको एक बार मैं अपनी एब्रीवेशंस में जाके एक्सप्लेन कर दूँ. ठीक है, तो इट इज़ अगेन प्लेजराइज्ड. अब सी दिस स्कोप, स्केड्यूल एंड कॉस्ट जो हमारा कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट में होता है. ये थ्री सीज में बेसिकली ट्रिपल कॉन्स्ट्रेंट्स होते हैं, स्कोप, स्केड्यूल, कॉस्ट. तो ये बार बार रिपीट होते हैं बहुत सारी जगहों पे, तो दे आर प्लेजराइज. तो हम इसको कर सकते हैं. स्केड्यूल को टाइम लिख सकते हैं, कोर्स को बजट लिख सकते हैं. वी जस्ट नीड टू रीफ्रेज दिस बिकॉज इट इज़ रिपीटेड मैनी टाइम्स. कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि हम कहीं से कॉपी नहीं भी करते, लेकिन फिर भी वो हम लिखते ही ऐसे हैं कि वो प्लेजरिज्म में आ जाती हैं. तो फॉलोइंग आर द बेसिक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द रिसर्च, हम यूजुअली यही कहते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द रिसर्च. तो हम इसको प्लेजरिज्म को रिमूव करने के लिए कर सकते हैं कि फॉलोइंग आर द रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स, इस तरह से कुछ रिफ्रेज करके. सी दिस पार्ट, इसके अंदर क्या चीज़ प्लेजरिज्म में आई है कि अगर मैंने ये कहीं से कॉपी किया है तो या तो इसका जो है सीक्वेंस ये होगा, जो मेरा है सीक्वेंस है, या ये वर्ड्स इनका आपस में सीक्वेंस ये होगा. तो व्हाट आई नीड टू डू इज़ आई नीड टू ब्रेक देयर सीक्वेंस. इसको नीचे ले जाऊँ, इसको ऊपर ले आऊँ, इस तरह से कुछ सीक्वेंस चेंज करना है. नाउ सी दिस टेबल, ये टेबल है. ये टेबल मैंने कहीं से कॉपी किया है, बट दिस इज़ नॉट प्लेजराइज्ड. वाई नॉट? यहाँ पे मैंने थोड़ी सी अक्लमंदी ये दिखाई है कि आई हैव कन्वर्टेड दिस टेबल इनटू पिक्चर. और अगर तो मैं टेबल कॉपी करती एज इट इज़, तो आई वुड हैव टू रीफ्रेज इट, या इनका सीक्वेंस मुझे चेंज करना पड़ता. जो 3 वर्ड्स आ रहे थे उसको रीफ्रेज किसी तरह से करना पड़ता मुझे. तो फॉर माई ईज या फॉर माई बीइंग क्लेवर, मैंने इसको पिक्चर में कन्वर्ट कर लिया है. सो इट इज़ नॉट इन प्लेजरिज्म. यू कैन सी दिस. नाउ लेट मी शो यू जो एब्रीवेशंस को मैं कह रही थी कि हम अलग से एक लिस्ट बना लें और अपने थीसिस या अपनी डॉक्यूमेंट के अंदर बार बार से उन टेक्निक्स का नाम ना लिखें जो कि प्लेजराइज्ड होती हैं. तो लेट्स सी क्या कैसे लिख सकते हैं उसको. ये एक एब्रीवेशंस की लिस्ट है जिसमें आई हैव रिटन ऑल दोज टेक्निक्स, मेथड्स या नेम्स जो भी हैं वो प्लेजरिज्म में आ सकते हैं, उनको आई हैव रिटन हियर. लाइक BIM, बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग, ये एक मेथड है, तो ये प्लेजरिज्म में आ सकता था. इसको मैंने एब्रीवेशन में डाला है. DSS, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, अगेन इट कैन बी प्लेजराइज्ड. इसको भी मैंने एब्रीवेशन में डाला है. DEA, डाटा एनवेलपमेंट एनालिसिस. इस तरह से आई हैव क्रिएटेड ऑल माई एब्रीवेशंस. MCPs, mega construction projects. OSH, Orient Square Hotel, it is a hotel in Lahore, it is under construction. तो इस तरह से चीज़ों के नाम भी हम एब्रीवेट कर सकते हैं. देन PM, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट. PKLI, पाकिस्तान किडनी एंड लिवर इंस्टीट्यूट. PAFDA, पंजाब एग्रीकल्चर फूड एंड ड्रग अथॉरिटी. SPC, स्टैटिस्टिकल प्रोसेस चार्ट. TCO, टाइम एंड कॉस्ट ओवररन. ये टाइम एंड कॉस्ट ओवररन की कोई TCO कोई एब्रीवेशन नहीं है, बिकॉज मेरे डॉक्यूमेंट के अंदर दिस वर्ड वॉज बीइंग रिपीटेड अगेन एंड अगेन एंड इट कुड हैव बीन इन प्लेजरिज्म. तो मैंने इसकी खुद से एक एब्रीवेशन बनाई है TCO एंड आई हैव पुट दैट इन द एब्रीवेशंस लिस्ट. देन WBS, वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर. तो ये इस तरह से कुछ चीज़ें हैं जिनको हम एब्रीवेशन जिनके बना के
एब्रीवेट करके उसकी लिस्ट बना सकते, सो दैट आवर डॉक्यूमेंट इज़ नॉट प्लेजराइज्ड. So while checking plagiarism, make sure you have not added table of contents in your document. Document में अगर add कर भी लिए हैं तो make a separate copy of that document and remove the table of contents, remove list of figures, remove list of tables and remove references. Before checking the plagiarism इन सब चीज़ों को remove कर लें ताकि ये सब चीज़ें plagiarism के अंदर ना आए. And जो टेक्निक्स, जो मेथड्स दैट आर एज इट इज़, जो सिमिलरिटी में आते हैं बट वी कैन नॉट चेंज दैम, तो मेक एब्रीवेशंस ऑफ दैम, मेक अ लिस्ट ऑफ एब्रीवेशंस एंड डोंट पुट दैट लिस्ट इन द डॉक्यूमेंट व्हाइल चेकिंग प्लेजरिज्म. तो ये कुछ रूल्स हैं, वी नीड टू फॉलो दैम, और इस तरह से हम कलर्स की बेसिस पे अपनी रिपोर्ट को रीड करके वर्ड्स को रीफ्रेज करके प्लेजरिज्म रिमूव कर सकते हैं. दैट्स ऑल फॉर टुडे. गुड बाय. Thank you. If you have any questions, please comment in the comment section below and subscribe to my YouTube channel. If you have any further queries, you can contact me on the given email address. Thank you.